first responsibility of every human being is his physical body. But the way we are handling this body is not sufficient. We will think about some tips, like few points. When I think about my body, most of us, we think about the appearance of the body, the physical health of the body. So, let us see the appearance of the body. We all want to become handsome, attractive, smart, and looking good. For that, we use most of the cosmetics and all. But the most, you can say, the best cosmetic ever on this earth, it's smile. Happiness, Baba says. So when like you have put all the cosmetics, but you are not smiling, agar chehre pe khushi nahi hai, smile nahi hai, then you can see all the cosmetic has no value, no meaning. So we must learn to smile. Smile means it's not a plastic smile, a smile on the face only, but it should be an eternal happiness. When you have eternal happiness, internal happiness, then it appears on your face. And that face is going to be attractive, no doubt, Everybody will see this is the personality. So we need to learn how to be happy internally so that it should come on our face. And the second thing is, when we think about our body, we think about the health aspect. And, by practicing, the doctors even say, the data says, the researchers say, more than 85% of our diseases are psychosomatic diseases. See, we are healthy because our mind is healthy. When our mind is not healthy, when mind is sick, the body becomes sick. And when you treat a person, if he accepts it on his mental level, like when we are healthy from our mental state, then only we become healthy. If all the medicines are given, but mind is not good, mental state is not good, then you can see people, they will not come out of the diseases. The proof of this is the hospitals are increasing, but the diseases are not decreasing. उर्दू में कहते हैं, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की. The more medicines have been invented, people become more sick. So there is somehow some imbalancing is there in the life, which we need to bring some balance. अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं, अगर हम सुंदर बनना चाहते हैं, अगर हम रियली हैंडसम बनना चाहते हैं, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज. लोग कहते हैं कि अगर आपको सुंदर बनना है तो ये बाह्य सुंदरता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक सुंदरता की भी आवश्यकता है. तो ये फिजिकल डायमेंशन को हमें इस प्रकार से देखने की आवश्यकता है कि मैं अपने मन का प्रभाव, अपने मन को ऐसा अच्छा बनाऊं जिससे मेरी पर्सनालिटी अच्छी बने. अगेन हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप. हर चीज को बैलेंस करने के लिए लास्ट में हमें किस चीज की जरूरत है. दूसरा जो डायमेंशन है वो है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन. जब हम इंटेलेक्चुअल डायमेंशन कहते हैं तो दो बातें आती हैं. First one is the brain part. They say this person is brainy one. शायद बहुत बार ब्रेनी लोगों को हम इंटेलेक्चुअल्स का नाम या दर्जा देने लग जाते हैं. But brain is a physical part of our body, like it's a part of our body. एक डेड बॉडी में भी ब्रेन होता है. But intellect is the
part of the soul. See, the soul, the eternal being, Atma, has 3 dimensions, 3 faculties. They are mind, intellect, and resolves. Mind we know very well, मन जो चलता रहता है, and intellect, the one who controls. And then there is always a tug of war between mind and intellect. And the impact of this tug of war, mind and intellect, that comes into the soul, that is sanskar. Everything what we do or we refrain ourselves from doing gives some impact to the soul, and that impact is known as sanskar. Okay, so intellect is the part of the of the soul. मन जो है, बुद्धि जो है, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है. याद करिए, बचपन में हमारे उड़ीसा में एक सुंदर सा भजन हुआ करता था, मते एति की सिखाओ साई हो, मोर धन जन लोड़ा नहीं हो. तुम्हें भला बुद्धि परा देता. मीन्स डिवाइन इंटेलेक्ट की हर किसी को कामना होती है. अगर भगवान से कुछ मांगा जाए तो सबसे ऊंची और अच्छी चीज है दिव्य बुद्धि. वो दिव्य बुद्धि क्या, इंटेलेक्ट होना और बुद्धिवान होने में अंतर है. मैं हमेशा शेयर करती हूँ एक बात. मुझे बचपन में मेरे लौकिक पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही. वो ये है कि राजा अपने राज्य में रिस्पेक्ट पाता है, राजा की महिमा उसके राज्य में होती है, लेकिन एक विद्वान जो है वो सारे जगत में पूजा पाता है. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल होने से ज्यादा विद्वान होने की जरूरत है. हम इंटेलेक्चुअली बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद्वता कम हो जाती है, जिसके कारण जीवन में कहीं ना कहीं एक सुंदर बैलेंस नहीं बन पाता है. तो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में हमें ब्रेनी होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हमें विद्वान होने की जरूरत है. आज हम सभी डायमेंशंस को लेकर के शुरू कहाँ से करें, अपने सारे डायमेंशंस को बैलेंस करने की, उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन. व्हाट इज इमोशनल डायमेंशन? Atma has 3 faculty: mind, intellect, and resolves. Emotion is in between mind and intellect, which has some soft qualities. See, as psychologists analyze our mind, our intellect, they say we have, in spirituality we say soul has 7 ingredients. Soul has 7 ingredients: sukh, shanti, prem, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, जिसमें से 3 ingredients are feminine and 3 are masculine. See, feminine ingredients are sukh, shanti, prem, and the masculine ingredients are pavitrata, shakti, gyan. And when all these 6 get balanced, what we experience is known as anand, bliss. So bliss is the ultimate achievement of a soul. When we are in our blissful state, then it is called the Atma. It's Sato Pradhan. See, Sato Pradhan means all 7 ingredients are in their full state. So the soft part of the soul, you can say the left hemisphere of the brain, has sukh, shanti, prem. These are somehow the emotional ingredient, emotional dimension of the soul. इमोशनल डायमेंशन में ये 3 चीजें आती हैं.
जो कि फेमिनाइन है। फेमिनाइन क्वालिटी ऑफ द आत्मा जो है वो इमोशनल क्वालिटी में कहलाती है। लेकिन संसार में चलने के लिए कहीं ना कहीं पालना देने का संस्कार भी होना चाहिए। आजकल दुनिया में देखो सब जगह गड़बड़ी है, फैमिलीज टूट रही हैं, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, बैलेंस नहीं है। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम सभी ने वो फेमिनाइन क्वालिटीज को छोड़ना शुरू कर दिया, लूज करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो मस्कुलिन क्वालिटी है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फेमिनाइन क्वालिटी हम लूज करते जा रहे हैं, इमोशनल क्वालिटीज लूज करते जा रहे हैं। इसलिए इस डायमेंशन में भी बैलेंस नहीं है, इमोशनल डायमेंशन में भी इंसान के पास बैलेंस नहीं है। जो फोर्थ डायमेंशन है इसमें से वो है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन बेसिकली क्या है, हम सभी we human being are social animals। हमें अकेला रहना नहीं पसंद आता है, सोसाइटी में हम रहते हैं, उसी से इंटरेक्ट होते हैं। और सोसाइटी में रहने के लिए एक सबसे ऊंची वृत्ति जो हमारे पास थी वो था देना, देवता। सृष्टि के आदि में हम देवता थे। क्यों? क्योंकि हम देना जानते थे, दे के सुख मिलता था। तो हमारा सोशल सेंस कैसा था? हमारा सोशल सेंस इस प्रकार से था कि हम दे के खुश होते थे। और भारत भूमि में, और स्पेशली मैं एग्जांपल देती हूँ उड़ीसा का, हमारी ये भूमि उड़ीसा भूमि, यहाँ पर लोग देने में बहुत अच्छे थे, हर किसी को देना जानते थे, दे के बहुत खुश होते थे, लेके कोई खुश नहीं होता था। अतिथि देवो भव, ये हमारे सारे भारत की संस्कृति है। कोई भी व्यक्ति दूर दराज से आ जाए, चाहे हम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन जब वो हमारे पास आता है तब उसे सबसे अच्छा सब कुछ दे देने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये करते थे पहले, यही सब, हर व्यक्ति में यही संस्कार था, हर फैमिली में ये संस्कार था, हर व्यक्ति को ये संस्कार दिया जाता था कि आप अपना बेस्ट दूसरों को दो 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 दो, दिया दिया दिया। इसलिए हम हर शुभ कार्य में दीपक जलाते थे, दिया जलाते थे, ताकि सब कार्य शुभ हो। जो हमें बताता है कि अगर जीवन में बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, ब्लिसफुल लाइफ चाहिए, तो देना सीखो। अगर आप देते हैं, दिया दिया दिया, देने से जीवन बड़ा आसान बनता है, सोसाइटी अच्छी होती है, सोसाइटी में एक सीमेंटिंग आता है, लोग आपस में बंधते हैं। लेकिन जब मनुष्य इम्बैलेंस होता है, उस समय उसके जहन में जो बात आती है वो है लिया लिया लिया, मैं दूसरों से क्या ले सकता हूँ। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, हम ये सोचते हैं उससे मुझे क्या मिलने वाला है। सुना? ये हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करती है, इम्बैलेंस कर देती है। एक हंसी की बात इस पे सुनाती हूँ। लिया लिया होना चाहिए क्या? दिया दिया दिया। दोगे तो देवता बनोगे, लोगे लेवता बनोगे तो इम्बैलेंस्ड लाइफ रहेगा। ये हंसी की बात ये है कि एक बिजनेसमैन था, वो कुएं में गिर गया, बड़ा सेठ, बड़ा पेट वाला। तो लोगों ने उसको बाहर निकालने की इच्छा की, तो बहुत लोग आए, कहा भाई सेठ जी हाथ दो, हाथ दो, हम तुम्हें बाहर निकालते हैं, हाथ दो हाथ दो। सेठ जी बेचारा हाथ नहीं दे पा रहे थे, और बाहर कैसे निकालेंगे लोग। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां खड़ा था और उसने कहा, अरे सेठ जी मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो। कहते सेठ ने जोर से हाथ पकड़ लिया, तो उसको लोगों ने हेल्प किया, वो बाहर आया। एक इस प्रकार की साइकोलॉजी आज मानव समाज में हो गई है कि देना, हाथ देना अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं इंसान कर पा रहा है, लेकिन लेने की वृत्ति से ज्यादा प्रभावित है कि मैं लूं करके, मुझे किससे खुशी मिलती है, मुझे किससे कुछ मिलने वाला है, तो मैं उनसे अच्छा रिलेशन रख सकूं और उसमें मुझे खुशी मिलती है, ऐसा। लेकिन
सोशल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें देना सीखना होगा। मैं हमेशा एक बात शेयर करती हूँ देने के लिए, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को दूजे को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान रे। आपको इस धरती का भगवान बनना है तो एक काम करें, निस्वार्थ पर भाव से देना सीखें, तो देखना आपका सोशल डायमेंशन बड़ा बैलेंस्ड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम देते तो हैं, देना तो संस्कार है, क्योंकि हम भारतीय हैं, जो भी हैं मनुष्य हैं, देवत्व है हमारे में, देवता ही संस्कार है, देना अच्छा लगता है, देते भी हैं, लेकिन देते हुए कहीं ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। देते 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 एक समय आता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं देता रहा देता रहा देता रहा, आखिर सामने वाला भी तो मेरे लिए कुछ करे। और जब ये एक्सपेक्टेशन आ गया कि मैंने दिया और मुझे उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, वही गड़बड़ी हो जाती है, सुना, वही हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट सोशल डायमेंशन के बाद है फाइनेंशियल डायमेंशन। फाइनेंशियल डायमेंशन, आज समय है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास वास्तव में धन की कमी नहीं है, उनकी आवश्यकता से कई गुना अधिक धन उनके पास है। सुना, क्या सुना? आवश्यकता से कई गुना अधिक धन उनके पास है, धन की कमी नहीं है। हमारी आवश्यकता जितना धन तो उससे ज्यादा हमारे पास है, लेकिन हमारे ग्रीड के लिए, हमारे लोभ के लिए कहीं धन नहीं है। बहुत सुंदर किसने कैप्शन बनाया है आज के इस सोच के साथ कि मोर इज नेवर इनफ। कहीं ऐसा है कि इंसान यही तृप्त हो जाएगा, उसके बाद उसे और कुछ नहीं चाहिए। कोई कहे भगवान बस मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कह सकता है, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद वो और एक्सपेक्ट करने लगता है। तो फाइनेंशियल डायमेंशन के लिए मैं एक और बात कहूंगी। हम सभी सीक्रेट के बारे में जानते हैं, दी सीक्रेट। एक बहुत सुंदर किताब है, हाँ, रोंडा बायन का लिखा हुआ बुक है, इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसमें यही बताया गया है कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं, सारी कायनात वो इच्छा आपकी पूरी करने के लिए लग जाती है। मतलब जिस पे आप फोकस्ड होते हैं उसको आप अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज पे आप फोकस्ड होते हैं उसको आप अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन को आपके पास पहुंचाने के लिए सारी कायनात, सारा यूनिवर्स काम करने लग जाता है। पिछले 2-3 सेंचुरी से, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी से इंसान की प्रायोरिटी धन होने लगा। 19th सेंचुरी आते आते मनुष्य की सबसे बड़ी प्रायोरिटी धन हो गया। 20th सेंचुरी में बहुत बड़ी प्रायोरिटी धन। 21st सेंचुरी में शायद मनुष्य का फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी मनी मनी एंड मनी है, धन 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 है। अभी जब से कोरोना हो गया शायद कुछ लोगों के मन में चेंज आया होगा। मतलब मेरे इसके बारे में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है। मैं स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, तो वहां स्टूडेंट से पूछा कि आपके जीवन का अल्टीमेट एम क्या है, ये जो पढ़ रहे हो उसके बाद क्या चाहिए। उनको बताया कि देखो बड़ा बड़ा पोस्ट लोग ले लेते हैं, लेकिन उस पोस्ट के लिए जितनी मेहनत, जितना टेंशन देना पड़ता है, उनका बॉडी ले नहीं पाता है,
जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत कम उम्र के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से चले जा रहे हैं। तो इसलिए आपको कैसा जीवन चाहिए बोलो? इंसान को लंबा जीवन जीना चाहिए कि कैसा जीवन जीना चाहिए? आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही कहा, बस फटाफट हमको करोड़पति बना दे भगवान, बहुत सारा पैसा हो और हम उस पैसे को खा पी के जल्दी चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 साल भी बहुत है अगर हमने जीवन को उस हिसाब से जी लिया तो। मतलब बड़ा एक अलग सा सोच है आज के बच्चों का, जिसमें किसी का कोई स्थान नहीं है, केवल पैसे का स्थान है। हाँ, मैं ये इसलिए कह रही थी कि जहां हम फोकस होते हैं वो चीज हमें प्लेंटी मात्रा में मिलने लगता है। सुना? तो मनुष्य ने अपनी प्रायोरिटी जब धन को बना लिया तो उसने बहुत धन कमा लिया है, बहुत 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 धन कमा लिया है। आज कोई भी व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकताओं से अनेक गुना धन है। ज्यादातर लोगों का टेंशन का कारण धन है, धन ना होना नहीं, अधिक धन होना है। तो कहीं ना कहीं इंसान धन के मामले में बहुत इम्बैलेंस हो गया है। उसका फाइनेंशियल डायमेंशन ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। उस डायमेंशन को मैनेज करने के लिए ये दुनिया का धन, वेल्थ तो ठीक है, कहीं ना कहीं आत्मा का अपना वेल्थ होना चाहिए ताकि वो उसको ठीक तरीके से हजम कर सके। वैसे भी हमारे देखते देखते इस प्रकार से लोग पहले सोचते थे, इफ वेल्थ हैज गॉन नथिंग गॉन। अगर धन जाता है तो कुछ नहीं गया, पैसा तो हाथ का मैल है, वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर हेल्थ गया, हेल्थ हैज गॉन मीन्स समथिंग हैज गॉन। आपका हेल्थ गया तो कुछ तो जीवन का चला गया। लेकिन अगर करेक्टर गोस, एवरीथिंग गोस। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जिस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता था जीवन में वो चरित्र था। चरित्र सबसे ऊंचा, हेल्थ को भी मेंटेन करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी सेकंड लेवल पे था। और धन की ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं था। अगर धन है ठीक है, नहीं है तो भी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन आज के तारीख में वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रायोरिटी धन है, उसके लिए वो अपना हेल्थ को भी गंवा रहा है। और करेक्टर का तो कहीं, मतलब आज की तारीख में करेक्टर का तो कुछ समझ भी नहीं आता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे? 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। तो हम फाइनेंशियल डायमेंशन के बारे में सोच रहे थे। 3 चीजें हैं इसमें, चरित्र, हेल्थ और वेल्थ। तो मनुष्य को ये शिक्षा दी जाती थी पहले, जो रियलिटी में होना चाहिए वो था चरित्र ऊंचा हो और उसके बाद हेल्थ का ध्यान दिया जाए। वेल्थ जो था वो लास्ट प्रायोरिटी था। लेकिन आज मनुष्य धन को एन केन तेन प्रकार कमाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से मनुष्य धन कमाता है, उस धन का प्रभाव उसके जीवन में उसी प्रकार से पड़ता है। तो इसलिए ये एक बहुत वाइड चैप्टर है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि हम ये धन का डायमेंशन कैसे बैलेंस रखें। बहुत लोगों के पास मैंने देखा है, लाइफ बड़ा आश्चर्यजनक है। मैंने बहुत नजदीक से इसे देखने की कोशिश की है। मैंने बहुत करोड़पतियों को पानी के लिए तरसते देखा है, 3 टाइम भोजन ठीक से न मिलते हुए देखा है, भूख में भूखे बैठे हुए देखा है, छोटे छोटे बच्चों को भी भोजन, करोड़ों पतियों के मतलब लोगों के बच्चों को ठीक टाइम पे भोजन न मिलना, ऐसा भी देखा है। और मैंने बहुत गरीब लोगों को अपने भोजन से दूसरों को खाना खिलाते देखा है। तो एक्चुअली धन, वेल्थ का अमाउंट कितना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा चरित्र क्या है, हमारा हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब प्रकार से, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं फाइनेंस में बैलेंस्ड हो सकेंगे। उससे अगला जो डायमेंशन है लाइफ का वो है एनवायरमेंटल डायमेंशन। पहले क्या कहते थे, कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते थे, इंसान को दुख होता था, दर्द होता था। मैं इन दोनों में बहुत अंतर समझ पाती हूँ, दुख और दर्द में। तो लोगों को दुख होता था या दर्द होता था, लेकिन आज समय आके पहुंचा है जहां डिजास्टर्स होते हैं। बाबा मुरली में कहा करते थे, हमारे जो यहाँ जो क्लास चलता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें जो हम सत्संग करते हैं उसको मुरली कहते हैं। तो मुरली में एक पॉइंट आता है जिसमें बाबा कहते, बच्चे दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं भविष्य में। ये दुख, ये दर्द तो कुछ भी नहीं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो वो डिजास्टर्स आज के तारीख में कॉमन होते जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, क्या हो रहा है संसार में। संसार में ये हो रहा है कि माता प्रकृति जो हम सबकी माँ है, जिसने हमें सिर्फ दिया 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 है, प्यार दिया, पालना दिया, प्रोटेक्शन दिया, छत्र छाया दिया, खिलाया पिलाया, सांस करने लेने को दिया, सब कुछ दिया। हमने उसे एक्सप्लॉइट किया किया किया, इतना एक्सप्लॉइट किया कि बात मत पूछो क्या हो गया है। क्या हालत हो गई है, कारण क्या है, किस प्रकार से माता प्रकृति ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, कहाँ अपसाइड डाउन हो गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। सारे सिनारियों को समझने से पहले मैं एक छोटा सा वाक्य आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटलाइज हुई, उसको हार्ट का कुछ, हार्ट केयरिंग की जरूरत थी, हार्ट ऑपरेशन का कुछ होगा मामला। तो 3 घंटा हार्ट ऑपरेशन को लगे और 3 घंटे के सर्जरी के बाद डॉक्टर ने उसको एक बिल दिया। बिल जो था वो कहीं ना कहीं $6 लाख का या 6 लाख रुपीस का था। और वो माता ने, ओल्ड लेडी ने जब देखा उस बिल को, तो उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू बहने लग गए, रोने लग गई। डॉक्टर ने कहा, एक्सक्यूज मी, अगर आपको इतना पैसा नहीं देना है तो मैं उसमें कुछ कंसेशन कर सकता हूँ, आप रोइए मत। तो उस लेडी ने कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसा है,
मैं ये बिल दे सकती हूँ, मैं बिल के लिए इसलिए नहीं रो रही हूँ कि बिल का अमाउंट ज्यादा है, मैं इसलिए रो रही थी कि मेरी आज के तारीख में उम्र 80 साल है। 80 साल तक तुमने 3 घंटे के लिए मेरे हार्ट को संभाला और तुमने मुझे बिल पकड़ाया 6 लाख रुपए का, लेकिन जिसने 80 साल तक मेरे इस हार्ट को संभाला उसने कभी मुझे कोई बिल नहीं दिया। सुना? 80 साल तक इस हार्ट को ठीक रूप से चलाने के लिए उसने मुझसे कोई बिल नहीं लिया, बड़े प्यार से दिया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दिया। लेकिन तुमने 3 घंटा संभाला और उसके लिए तुम इतना बड़ा बिल मांग रहे हो। कहीं ना कहीं हम सबको सोचने की जरूरत है कि माता प्रकृति ने हमें क्या दिया। उसके लिए जरूरत है कि माता प्रकृति के साथ मेरा रिश्ता क्या है, मैं वो समझूं। हम इस बात के लिए आएंगे, उससे पहले हम 7th डायमेंशन पे जाते हैं, वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है? जब हम बात स्पिरिचुअलिटी की सोचते हैं तो सोचते हैं शायद कहीं तिलक लगाना पड़ेगा, सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे या भगवे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, संसार छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा या घंटों कहीं प्राणायाम करके बैठना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मेरा ट्रुथ है, मेरा इटर्नल ट्रुथ है। मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ हूँ। हमारी दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति कराया करती थी। उनसे ही ये 3 बार ओम शांति का जैसे एक परंपरा चला आ रहा है। जब वो 3 बार ओम शांति करती थी तो उसका अर्थ इस प्रकार से समझाती थी। पहला ओम शांति का अर्थ है ओम माना मैं आत्मा, ओम मैं कौन, हु एम आई, व्हाट एम आई। ये है पहला ओम शांति। दूसरा ओम शांति है मेरा कौन। पहला है मैं कौन, दूसरा है मेरा कौन, टू हुम डू आई बिलोंग। मेरा कौन है इस दुनिया में, मैं किससे बिलोंग करता हूं, किसको मैं अपना कहूं। एक इतना छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए सारी दुनिया उसकी माँ है, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चा होता है, दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है तो माँ के बुलाने पे भी नहीं आता है। और थोड़ा बड़ा होता है तो टीचर से उसका बुद्धि योग लग जाता है। और बड़ा होता है तो किसी से प्रेम करने लगता है, उसकी अपनी फैमिली हो जाती है, पत्नी बच्चे, और उस दूसरे संसार में चला जाता है। तो हमारा लव एंड अफेक्शन ट्रांसफरेबल है। इसमें से कौन मेरा अपना है? कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरे सब, इनमें से कोई मेरा परपेचुअल नहीं है, इटर्नली मेरा कोई नहीं है। लेकिन कोई तो मेरा है, मुझे उसे ढूंढने की जरूरत है, जो मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। मैं जिसकी हूं, जिसकी थी और जिसकी हमेशा रहने वाली हूं, वो मेरा कौन, वो दूसरा ओम शांति। तीसरा ओम शांति, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वाई आई एम हियर। मेरे एग्जिस्टेंस का, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई बीइंग, माई एग्जिस्टेंस। मेरे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये जानना स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं यहाँ क्यों हूं। लेकिन एक सुंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो परमात्मा ने हमें बताया है, वो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो ये है इस सृष्टि के रचयिता और उनकी रचना का
आदि, मध्य और अंत का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, और यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। आई रिपीट, रचयिता और उसकी रचना के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। जब मैं इस लेवल पे पहुंच पाती हूं, इस ज्ञान को कंप्लीटली समझती हूं, तब मैं स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो सकती हूँ। सुना क्या है? इसकी गहराई में जाते हैं। रचयिता, ये सृष्टि यूं ही नहीं खड़ी हो गई है, चुटकी किसने बजाया हो या कोई मैजिकल रॉड किसी फेरी ने आके घुमा दिया और सृष्टि बन गया हो, नहीं। बिना किसी मालिक का ये सृष्टि नहीं है। बहुत प्लानिंग से, बड़े सुंदर रीति से किसी बहुत ग्रेट रचनाकार ने, सर्वशक्तिवान रचनाकार ने इस सृष्टि को बनाया है। आप सोचें, हम सबके नाक आगे ही हैं, कोई पीछे नाक वाला है दुनिया में? नहीं है, आंखें यहीं पे ही हैं। सब मनुष्य इसी प्रकार से बने हैं। आप एक ऑरेंज ले लीजिए, हर एक ऑरेंज एक जैसा ही दिखता है। सोचिए, कोई भी चीज दुनिया का ले लीजिए, उसे एडमायर करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे, आप आश्चर्य से नाच उठेंगे। ये कौन रचनाकार है? ये कौन रचनाकार है? किसने इस सृष्टि को बनाया है? कोई तो है रचनाकार, कोई तो क्रिएटर है। उस क्रिएटर को जानना है, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को जानना है। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। और जो मेरा कौन वाला पाठ पढ़ा ना, आई बिलोंग टू हिम, ही बिलोंग्स टू मी। वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं। वो मुझ आत्मा के पिता हैं, वो मेरे इटर्नल फादर हैं। कोई ऐसा समय नहीं था जब वो मेरे नहीं थे, कि कोई ऐसा समय नहीं आने वाला जब वो मेरे नहीं रहेंगे। वो मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। उस परमेश्वर से हमारा संबंध था, है और हमेशा रहेगा। तो उस पिता, उस परमेश्वर को जानना है, उनकी रचना को जानना है। परमात्मा की रचना क्या है? ये इतनी बड़ी सृष्टि उनकी रचना है, लेकिन फिर भी उनकी रचना के लिए जानना है। ये सारा यूनिवर्स उनकी रचना है। इस यूनिवर्स में जो भी हलचल हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी रचना के हिसाब से हो रहा है। वो इस सृष्टि एक ड्रामा है। कितना सुंदर कहा, ये सृष्टि एक इटर्नल ड्रामा है। दिस इज एन इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड। दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड। इटर्नल ड्रामा चल रहा है। कौन है इसमें? परमात्मा है, और उनकी रचना हम आत्माएं हैं, और उनकी एक और रचना ये प्रकृति है। प्रकृति माता है, परमेश्वर परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान आत्माएं हैं। ठीक है। और उनकी इस रचना के आदि, मध्य, अंत को जानना, ये जो है, ये सत्य ज्ञान है, यही आध्यात्मिकता है। अगर ये डायमेंशन हमारा ठीक नहीं है, तो बाकी सारे डायमेंशन अपसाइड डाउन है। क्या इसमें जानने की जरूरत है? हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। उसके हमारा अपना घर और हमारे पिता परमात्मा का जो घर है, वो ब्रह्मलोक, परम धाम है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वो सबके स्वामी परमेश्वर पार ब्रह्म में रहने वाले हैं। वो ब्रह्मलोक उनका घर, हमारा भी घर है।
लेकिन उस घर से परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि रंगमंच पर खेलने के लिए भेजा है। सुना? उस परमेश्वर परमात्मा ने हम आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर खेलने के लिए भेजा है। कहाँ भेजा है खेलने के लिए? माता प्रकृति की गोद में भेजा है खेलने के लिए। ये माता प्रकृति हम सभी की माता है, देने वाली माता, जो अनकंडीशनली सिर्फ अपने बच्चों को देती है और देती है। शिव बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि बच्चे, प्रकृति तुम्हारी दासी बनती है, प्रकृति तुम्हारी दासी बनती है। जो सृष्टि मैंने बनाई थी उसमें प्रकृति दासी होती है। हम ये दासी शब्द जब सोचते हैं तो समझते हैं कोई ऑर्डरली, ऐसा जिसको हम सैलरी देते हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिनको दासी कहा जाता है। एक्चुअली नहीं। शिव बाबा ने इस बात को बहुत सुंदर रीति से हमें बताया है कि बच्चे, जो बड़े बड़े लोग, वाइसराय लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, वो जब सही करते थे, सिग्नेचर करते थे, तो क्या लिखते थे? योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। हाँ, हमारा गजपति महाराज भी जेतोले कहती कौन कहती, ये सेवक, ये सेवक को कह के सब हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं, सेवक जो होता है वो बहुत महान होता है। और बाबा क्या कहते हैं बच्चे? दुनिया का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट पेरेंट्स होते हैं, माता पिता। सुना? माता पिता का सेवक का मतलब कोई दास, ऐसा कृतदास जैसा दास नहीं है, लेकिन जो बच्चे के इच्छा से पहले उसकी इच्छा पूरी करते, माता पिता ऐसे दास होते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हर पेरेंट क्या सोचता है कि मेरे बच्चे की जो इच्छा है मैं पूरा जीवन लगा करके उसकी इच्छा पूरी करूं। हर मांग पूरी करने की सोचते हैं, ये भी दूं, वो भी दूं। जो बच्चे ने अभी सोचा भी नहीं होगा, उसको भूख लगने से पहले खाना देना, उसको कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, उसको समझ में आए या नहीं आए देना। तो ये है सच्चे सेवाधारी पेरेंट्स। तो माता प्रकृति हमारी दासी थी माना, हमारी हर आवश्यकता की पूरी कर, आवश्यकता को हमारे मन में आने से पहले पूरा करती थी। शास्त्रों में दिखाया गया है कि सागर रत्नों की खानियां ला करके देते थे, जो तुम्हें चाहिए अलंकार ले लो करके। तो प्रकृति माता ने हमें हमेशा दिया और बहुत प्यार से पाला। तो ये इटर्नल ड्रामा किसका है? सोल, मैटर एंड गॉड का। ठीक है? तो परमात्मा और उसकी रचना, पहली रचना हम सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, और दूसरी रचना ये माता प्रकृति। और इसका आदि मध्य अंत का ज्ञान मतलब क्या? सृष्टि के उद्गम के बारे में बहुत सारी थियरीज हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर थियरी है डार्विन की थियरी ऑफ इवैल्यूएशन। हाँ, डार्विन की थियरी ऑफ इवैल्यूएशन। ऐसा समझते हैं कि ये सृष्टि जो है धीरे 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 बढ़ती गई है। पहले एक बिग बैंग हुआ, जिसमें से सूर्य में से एक हिस्सा निकला, वो जलता हुआ सूर्य का हिस्सा धीरे 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 ठंडा हुआ, उसमें जल हुआ, जल में अमीबा हुआ, अमीबा से पता नहीं मेंढक हुए, मेंढक से कुछ और, फिर बंदर हुए, और बंदर इंसान बना। इस प्रकार से सृष्टि बनी। इवैल्यूएशन की थियरी राइट नहीं है। इस सृष्टि में लॉ ऑफ एंट्रोपी चला है। किस प्रकार से, कैसे? उस परमेश्वर ने, सर्वशक्तिवान भगवान ने परफेक्ट सतो प्रधान प्रकृति बनाकर हम सबके लिए एक सतो प्रधान दुनिया बनाई थी, जिसको स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, जन्नत, बहिश्त और क्या क्या, गोल्डन एज, पता नहीं कितने सारे नाम दिए गए हैं। वो सुंदर सी सृष्टि परमात्मा ने इसी धरा पे बनाई थी। तब माता प्रकृति भी सतो प्रधान थी। ऐसी दुनिया थी, वहां कोई गिरे तो उसको चोट नहीं लगे।
देवताओं को कभी चोट ही नहीं लगती थी, दुख कष्ट का दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। ऐसी ये दुनिया थी। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एंट्रोपी लगा, धीरे 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 सतो प्रधान दुनिया सतो सामान्य में आई, और एक ऐसा समय आया जब मनुष्य देह अभिमानी हो गया। हम देवता नहीं रहे, आत्माभिमानी नहीं रहे, क्या बन गए? देह अभिमानी बन गए। हमने अपने आप को ये कॉस्ट्यूम समझना शुरू कर दिया। वहीं से धीरे धीरे जो बैलेंस है वो हिलने लगा। हम सतो प्रधान आत्माएं कहीं ना कहीं सतो रजो तमो के खेल में आने लगी। और धीरे 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 ये सृष्टि तमो प्रधान हो गया है। आज जो समय है, ये समय कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये समय कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, परिवर्तन का समय है। हमें इस परिवर्तन के समय को जानना होगा और अपने जीवन के, अपनी आत्मा के सातों ही डायमेंशन को बैलेंस करना होगा। और सभी बैलेंस तभी होगा जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल बैलेंसिंग आएगा। हम ये समझेंगे कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। सुना? और जैसे ही आत्मा हूं, सृष्टि रंगमंच है, हम सभी पवित्र आत्माएं यहाँ खेलने के लिए आए थे। जब ये भाव दिल में आता है, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे पिता हैं, सृष्टि रंगमंच है, जो कुछ भी हो रहा है खेल हो रहा है, इस भावना के साथ हमारे मन में माता प्रकृति के लिए अगाध प्यार और रिस्पेक्ट आएगा। क्योंकि मेरा कौन, शिव बाबा तो, परमात्मा तो ऊपर हैं, लेकिन उस दुनिया से जब हम इस दुनिया में खेल खेलने के लिए आए तो हमें किसने सब कुछ दिया? सोचें, आज के तारीख में भी किसने सब कुछ दिया? बताया ना, सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कितना पैसा देते हैं। अभी कोरोना में ऑक्सीजन के भाव का पता चला। खाने पीने रहने, खुली हवा, जो कुछ भी हमें मिल रहा है माता प्रकृति दे रही है। तो दिल से जब माता प्रकृति के लिए रिस्पेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंटल डायमेंशन को भी बैलेंस कर पाएंगे। पॉल्यूशन बाहर नहीं होता है, पॉल्यूशन पहले यहाँ से शुरू हुआ है। जब इंसानी मन में पॉल्यूशन आया है तब जाकर के सारे विश्व में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ है। तो हमें उसको बैलेंस करने की जरूरत है। उसके बाद ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बैलेंस भी आ जाएगा। धन गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए मेरी सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है। धन को किस प्रकार से कमाया गया है वो महत्वपूर्ण है। धन के लिए मेरा दृष्टिकोण क्या है वो महत्वपूर्ण है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो लिटरली हमें अपने फाइनेंस को, हमें अपने धन को, वेल्थ को कहीं ना कहीं बैलेंस करना आता है। इंसान ऐसा है, वो करोड़ों भी खर्चा कर सकता है तो बहुत कम में भी बहुत अच्छा गुजारा कर सकता है। खुशी के लिए, आनंद के लिए बहुत ज्यादा सब कुछ की जरूरत नहीं है। आप जहां जैसे हैं वहां, अगर ये इंटरनल वेल्थ आपका सॉलिड है तो आप धनवान हैं, आपके पास ज्यादा है, शेयर करने के लिए भी बहुत कुछ है। वैसे ही आप अपने सोशल सेंस को भी बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। हर आत्मा इस विश्व के रंगमंच पे अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, वही परफेक्ट है जैसी भी है। तो मेरे मन में हर व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट आएगा। मेरे अंदर हर व्यक्ति के गलती को क्षमा करने की कैपेसिटी आएगी। सोसाइटी में जब एक इतने बड़े पैमाने पे लोगों के मन में
एक सुंदर जागृति आएगी, स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, आत्मिक दृष्टिवृत्ति आएगी, हर एक के लिए रिस्पेक्ट मन में आएगा, तो देखना सोशल बैलेंसिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इमोशनल बैलेंसिंग भी हो जाएगा, हर आत्मा के प्रति दया प्रेम सब कुछ आएगा, और दिव्य बुद्धि भी मिलेगी परमात्मा की स्मृति से। फिर देखना उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। जब मन हेल्दी है तो क्या होगा, मन दुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। तो हमें अपने जीवन के इन सातों डायमेंशंस को अच्छी तरह से समझ करके इसमें बहुत सुंदर एक बैलेंस लेकर के आना है, तब जीवन में बैलेंस आएगा। चलिए कुछ समय हम इसे इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। सभी सीधा होकर बैठे, मन को प्रसन्न करें। इतनी सारी बातें जो अभी हमने सुनी, उसे अपने मानस पलट पे लेके आए। शुक्रगुजार होते हैं परमात्मा के आज के इस सुंदर सत्र के लिए। और बीच में मैं हमारे पटिया के भाई बहन, आईटी डिपार्टमेंट के सभी भाई बहन, और विशेष करके हमारे पित्तबास भाई जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर एक अच्छा सा वेबिनार का आयोजन किया। और हम सभी अभी जो सुना है अभी तक उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हमने सीखी, जब दिल अंदर खुशी होगी तो चेहरे में मुस्कुराहट होगी। दिल की गहराई में खुशी को अनुभव करें। परमात्मा मेरे पिता हैं, प्रकृति मेरी माँ है, मैं सुरक्षित हूँ, संपूर्ण सुरक्षित। मेरा कुछ भी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मेरा जन्म खुश होने के लिए और खुशी बांटने के लिए हुआ है। मेरे भीतर खुशी का अंबार है, मैं उस खुशी को सारे विश्व में बांट सकती हूँ। खुशी मेरी अपनी दौलत है। मेरा मन दुरुस्त है, तो मेरा तन तंदुरुस्त है। शांति मेरा स्वधर्म है। आई एम अ पीसफुल सोल। उस सर्वशक्तिवान पिता ने मुझे अथाह शक्ति दिया है। हाँ,
आध्यात्मिक शक्तियां बांटने से बढ़ती हैं, उसे रोक देने से हाथ से निकल जाती हैं। मुझे खुश रहने के लिए मुझे दूसरों को खुशी देना होगा। मुझे प्यार की अनुभूति करने के लिए अनकंडीशनल लव सारी दुनिया को देना होगा। खुश रहने के लिए हर आत्मा को एज दे आर एक्सेप्ट करना होगा। नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस। हर आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, वो भी परफेक्टली। मैं सब कुछ देखकर आनंदित हूँ। वाह प्रभु, क्या सुंदर सृष्टि बनाई है। हर चीज बहुत परफेक्ट है। मेरे पिता इस जगत के पिता हैं, जगत कल्याणकारी है। मेरे जीवन का उद्देश्य भी कल्याणकारी हो। जितना हमें ये प्रैक्टिस होगा कि सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ हैं, वो मेरे पिता हैं, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होगा। इस दुनिया में मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। मुझे अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए हर वक्त कुछ अच्छा करने को सोचना है। अगर मैं चुपचाप बैठी हूं तो स्माइल कर लूं, खुश हो लूं, ये सोचूं कि जगत में सब खुश हो जाए। नो डाउट जीवन में परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्हें खेल समझ लूं। अपने सिर का बोझ परमेश्वर को दे दूं। छोटी छोटी चीजें सीख लूं तो देखना, फिकर से फारिग इंदा स्वामी सदगुरु, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। जब हम अपने सारे फिक्र उनको दे देते हैं तो वो प्रभु हमें फिक्र से फारिग कर देते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। यस प्लीज। ओम शांति। थोड़ा शायद अनस्टेबल है यहाँ पे हमारा इंटरनेट। ठीक से सुनाई दे रहा है सभी को? वीडियो नहीं आ रहा है। शायद अनस्टेबल है थोड़ा। ओम शांति। जी। Thank you, sister. Thank you so much for this wonderful session. Then दो क्वेश्चन था। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? Om Shanti, Pandra Abbas Sunai, not a problem. So there are two questions from the participants. Yes, please. Any practical tips to control mind? How to use traffic control? So that is the first question. माइंड को कंट्रोल कैसे करें? बहुत अच्छा। एक सेकंड जरा मैं शिफ्ट कर रही हूँ। जी। ओम शांति। माइंड को कंट्रोल कैसे करें? शिव बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर बात कही। कहा बच्चे पता है जब मंदिर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? फूल लेके जाते हैं। फूल को क्या कहते हैं? सुमन। एक्चुअली सुमन नहीं लेके जाने की जरूरत है, सुमन लेके जाने की जरूरत है। एक सुंदर सा मन। परमात्मा हमारा सुंदर सा प्यारा सा मन स्वीकार करते हैं, तो इसलिए हमें सुमन बनाना है। इस मन को कभी दमन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन नॉट सरप्रेस इट, यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। आप इसको सरप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, आप इसको दबा भी नहीं सकते हैं, दमन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मन को सुमन कर सकते हैं। मन को सुमन कैसे कर सकते हैं? मन एक चंचल घोड़ा है, वाइल्ड हॉर्स, जिसकी वृत्ति और प्रवृत्ति भागना है। वो इधर उधर भागेगा, भटकेगा। लेकिन जो घोड़ा ज्यादा तेजी से भागता है वो अच्छे नस्ल का घोड़ा माना जाता है। करना क्या होता है? उसको एक अच्छे ट्रेनर को दे करके उसे ट्रेन करना होता है। जब एक अच्छा घोड़ा, अच्छी नस्ल का घोड़ा ट्रेंड हो जाता है, उसमें लगाम लग जाता है, तो वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। वैसे ही ये मन जो है वो कंट्रोल करने वाली चीज नहीं कि उसको दबा लो, मन को कुछ सोचने नहीं दो, मन को दमन करो, जो मन में ख्याल आता है, चिंतन आता है, उसको दबा लो। नहीं, मन को डायरेक्शन देने की जरूरत है। मन के टेस्ट को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है।
उसे राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वो हमें आध्यात्मिक चिंतन बताता है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को ब्रॉडली अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हम अपने मन को सुमन बनाने लगते हैं। उस पर जैसे लगाम आ जाता है आपको, और आप उसको राइट डायरेक्शन देते हैं कि मन इस तरफ चलो। तो वो जब उस तरफ भागता है तो आपको आनंद देता है, प्रेम देता है, खुशियां देता है। और आपको मेडिटेशन में कहीं डल नहीं हो जाना होता है। बहुत लोग सोचते हैं, देखो मेडिटेशन में बैठे, डल हो गए, नींद आ गई, सोचते हैं शांति मिल गई। वो शांति नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में आप और गहरा जाते हैं। हाँ, नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है जो आपको थका देती है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, जो आपको और एनर्जेटिक करते हैं, रिचार्ज करते हैं, खुशी देते हैं। तो ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो आपको धीरे धीरे अपने मन को देना होगा, मन को लगाम के अंदर लाना होगा, जिससे देखना आप बड़े आनंद में हमेशा रहेंगे। छोटे छोटे टिप्स अपने मन को दीजिए। अभी मन परेशान है, बोलो मन अभी परेशान मत हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी शांत हो जाओ, थोड़ा स्माइल करो, खुश हो जाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पिता हैं भगवान। तो ऐसी छोटी छोटी सी जो मन को देख करके हम आनंदित रह सकते हैं। जी। Thank you, sister. There is another question. So, how am I meant to live? So, how do I live? What about my aspirations in life? Not obviously not money, but how about my aspirations in life and how do I live? How do I live? So, that is other questions from S. Sukanti. हाँ, एक्चुअली मुझे जीवन में क्या चाहिए उसको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। अभी मैंने देखा कि एक कार, बहुत डैशिंग कार देखी, मुझे दिल हो गया ये। वो कार अभी मैं लाया ही हूँ। मैंने देखा कि लोग प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स रखते हैं, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर, कितना अच्छा मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए। और मैंने वो हेलीकॉप्टर भी मुझे मिल गया और मैंने ले लिया। लेकिन अल्टीमेट आता था, चाहता हूँ Yeah, I guess network उसमें मुझे problem. खुशी मिलेगी, So, मुझे audio is आनंद breaking. Sorry, audio is मिलेगी। ऑडियो इज ब्रेकिंग। breaking, sister. Once again, I repeat. कैन यू हियर मी नाउ? इज इट क्लियर नाउ? Uh, शायद नहीं। yeah. हाँ, बेचंदी। ओम शांति। ठीक है। Yes, sister, go ahead. हाँ, अभी बेटर। ठीक है। पहले अपने आप से बात करने की जरूरत है। जैसे हम हर किसी चीज के लिए काम करते हैं, गहरा Yeah, sorry again, breaking. Maybe you can switch off your video. stand, but ओम शांति। ओम शांति। Yes, sister, we can hear you. या थैंक यू ब्रदर। हाँ, अब मुझे ये देखना है, अपने ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले ये सोचें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। सुना, मुझे जीवन में क्या चाहिए। अरे वाह, तो ये बात थी।
एक उस चाय के पीछे का रीजन क्या है वो भी ढूंढिए, मुझे ये चीज क्यों चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते आप देखना कहीं देखेंगे आपको खुशी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद की जरूरत है, आपकी आत्मा कुछ ज्ञान चाहती है। तो उसके बाद सोचें कि मैं इस चीज को कैसे लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे अजम्पशंस बड़े अलग हो गए हैं। इस सोसाइटी में रह करके जैसे दूसरे लोग सोचते हैं हमने वैसा ही सोचना शुरू कर दिया है, जबकि ये जानते हैं कि अगर आप वैसा ही सोचोगे जैसा अब तक सोचते रहे हो वही पाओगे जो अब तक पाते रहे हो। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप वैसा ही सोचते रहेंगे जैसा आपने आज तक सोचा है आप वही पाते रहेंगे जो अब तक आज तक आपने पाया है। तो हम दुनिया को देखकर हाँ जी, दुनिया के हिसाब से ही हमने अपने मन को बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। हमें थोड़ी और गहराई में जाने की जरूरत है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भीतर जाने से हम अपने आप को पहचानेंगे, अपनी आवश्यकताओं को जानेंगे। तो देखना मेरा जीवन किस उद्देश्य से होना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं विश्व को कुछ देने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशी लाने के लिए। धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव सुन करके आपको लगेगा कि जीवन की वास्तविक आवश्यकता क्या है। मैं आपको अपने अनुभव बताती हूँ। मुझे बचपन से ही बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था, और जो लोग बुजुर्ग भी हैं और सक्सेसफुल लोग हैं उनका इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता था। कहीं शायद मैं ऐसा सोचती थी कि भाई आग में हाथ डाल के ही अनुभवी बनने की जरूरत नहीं है, दूसरों के अनुभव से भी अनुभवी बना जा सकता है। तो जो लोग इस दुनिया में ज्यादा लंबा जी चुके हैं उनके अनुभव से अगर हम चलेंगे आगे तो झटपट झटपट वहां पहुंच जाएंगे जहां वो लोग पहुंच चुके हैं। जहां पहुंचने के लिए उनको 80-90 साल लगा है वहां हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए कई इंटरव्यूज में मैंने जो चीज नोटिस की है वो ये है कि इतने लंबे समय के जीवन के बाद आप उन चीजों को कहीं याद नहीं रखते हैं जिसमें आपने बहुत धन कमाया, बड़ा दौलत कमाया, आपको कहीं शोहरत मिल गई, आपका रिस्पेक्ट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, वो कहीं याद नहीं रहता है। लेकिन जो कार्य आपने निस्वार्थ पर भावना से किया और उससे दूसरों को खुशी मिली, दूसरों को आनंद मिला, छोटे से आपके काम ने लोगों के जीवन में मुस्कुराहट ला दिया, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, उनका जीना आसान बना दिया, तो वो आपके जीवन का दौलत बन जाता है। मैं कई कई लोगों के अनुभवों को याद कर पा रही हूँ, समय के हिसाब से मैं नहीं बता सकती हूँ अभी। तो वैसे ही हमें चाहिए कि हम जीवन में कुछ ऐसे बताएं हम दूसरों के लिए जिए। हाँ, उसमें भी और गहराई से हम जो सोशल सर्विस की भी बात सोचते हैं कहीं ना कहीं बहुत शैलो है, और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो देखना जीवन जीने का बड़ा आनंद आएगा। स्पिरिचुअल ट्रुथ ये है कि हमारे वाइब्रेशन से सारी दुनिया इन्फ्लुएंस होती है, और अगर हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पे लेके आते हैं, अपने वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा दुनिया को। ठीक है, तो आज इतना ही, क्योंकि समय भी हो रहा होगा जैसा भी कहें, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करके, अपने मन में खुशी ला करके, दुनिया में खुशी थाली में नहीं मिलती है, बातें तो हमेशा और रहेंगी जिंदगी में आसपास में, लेकिन बावजूद उसके आप मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, तो ये संसार को आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। ओम शांति। Thank you, sister, for beautiful explanation. Over to Sister Bandana.
Thank you, sister. Thank you so much for this wonderful session. Now I am requesting our center in charge, Patia Center, BK Gola, Didiji, to deliver the vote of thanks. Over to you. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद है। उसके बाद हमारे आईटी विंग के चेयरपर्सन परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मार्गदर्शन में आईटी सेवाएं चल रही हैं। उसके बाद हमारे मधुबन के आईटी के कोऑर्डिनेटर राजयोगी ब्रह्मा कुमार यशवंत भाई को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद आज के हमारे विशेष वक्ता परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लीना दीदी जी को भी मैं दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। दीदी जी हमारे भुवनेश्वर सब जोन के मुख्य हैं, जिनकी शुभ भावना से आईटी सेवा चल रही है। दीदी जी हम सभी को बहुत बहुत सुंदर तरीके से आज के टॉपिक्स पर समझाया, मेडिटेशन कराया। इसके लिए मैं दीदी जी को परमात्मा की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी भाई बहन के तरफ से बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीदी जी आपको बहुत बहुत थैंक्स, इतना समय लेके हमको इतना ज्ञान समझाया। आज के प्रोग्राम में जिनके भी सहयोग रहा उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी भाई बहन जो आज के इस प्रोग्राम में जुड़े, चाहे जूम के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को धन्यवाद करते हुए परमात्मा की याद में रहकर मैं अपनी वोट ऑफ थैंक्स समाप्त करती हूँ। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मना